परम पूज्य जितेंद्रनाथजी महाराज, सौ रेणुकामाईबाई, रेखाताई खंडेलवाल, वृषाली देवी, प्रशांतजी हरतालकर, पूजाबेन देशमुख, धारणीबेन शुक्ला, श्वेताबेन जनकभाई खांडवाला, आप सर्वेने विनंती करूँ कि आप दीप प्रज्वलन માટે મંચ પર વિરાજમાન. વિશ્વ માંગલ્ય સભા એ ખૂબ જ સુંદર રીતે મહિલાઓ તથા યુવતીઓના જીવન સંસાધન તથા જીવન સંસ્કાર આપવા માટે જીવન વિકાસ એટલે કે સાચી દિશામાં ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું વિવિધ આયોજન કરે છે તથા આ માતૃશક્તિને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ગુરુજી લિખિત શક્તિગાનનું પઠન કરવા માટે હું શ્રીમતી નીલિમાબેન ચિખલકરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વ્યાસપીઠ પર પધારે અને શક્તિગાનનું પઠન કરે. શ્રીમતી નીલિમાબેન. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. दिव्य तन मन दिव्य जीवन दिव्य चिंतन प्रेरणा देव देश स्वधर्म कारण विश्व मंगल साधना विश्व मंगल साधना. येसुबाई जिजाऊ लक्ष्मी रानी दुर्गावती अहिल्या धन्य हम वारिस उनके आधुनिक जग अनुकूला. याग जीवन का सजा कर साध्य कर व्रत धारणा देव देश स्वधर्म कारण विश्व मंगल साधना विश्व मंगल साधना. रावणारी राम और श्री कृष्ण कंसारी यदु वाहे गुरु शिवराय राणा धर्म भगिनी वीर बंधु जन्म देकर वीर ऐसे माँ बने हम पुनः पुनः देव देश स्वधर्म कारण विश्व मंगल साधना विश्व मंगल साधना. सतगुरु है नाथ हम पर दो कृपा का तेज अब मातृभू की विश्व गुरुता हम दिखाए विश्व को अब. शक्ति संस्कारा सहित हो जय भवानी गर्जना देव देश स्वधर्म कारण विश्व मंगल साधना विश्व मंगल साधना. दिव्य तन मन दिव्य जीवन दिव्य चिंतन प्रेरणा देव देश स्वधर्म कारण विश्व मंगल साधना विश्व मंगल साधना.
विश्वमंगल साधना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ધન્યવાદ નીલિમાબેન. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા આપણી કર્ણાવતીની ગુજરાતની ધરતી પર ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલયના આ સભાગૃહ પર ઉપસ્થિત વ્યાસપીઠ પર ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોનું ભાવભર્યું સ્વાગત છે. ભારતીય પરંપરા મુજબ આપણા અત્રે પધારેલ અતિથિઓનું સ્વાગત કરવું એ આપણી પરંપરા છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી જીતેન્દ્રનાથજી મહારાજ સભાચાર્ય વિશ્વમાંગલ્ય સભાનું સ્વાગત કરવા માટે હું ડૉક્ટર ધારણીબેન શુક્લા તથા ડૉક્ટર અંજનાબેન બારોટને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ગુરુજીનું સ્વાગત કરે. અનંત શ્રી વિભૂષિત શ્રી પ્રાપ્ત કરેલ છે. ગત 14 વર્ષથી રાષ્ટ્રવ્યાપી માતૃ સંગઠન VMSના આ પૂર્ણકાલીન પ્રચારક તરીકે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરેલ છે. આપે ભાગવદ્ ગીતા જેવા મહાન ગ્રંથનો વિશેષ અભ્યાસ કરેલો છે અને અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપને શ્રીમદ ભાગવદ્ ગીતા કંઠસ્થ છે. ધારણીબેન શુક્લા સુપ્રસિદ્ધ કેળવણીકાર છે. તેઓ રિટાયર્ડ પ્રિન્સિપલ છે. વુમન ક્રિકેટ એસોસિએશન ઇન્ડિયાના વાઇસ પ્રેસિડન્ટ છો. આપ સમગ્ર ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજના મહિલા પ્રમુખ છો. આપ દરા ઉદ્યોગ ગૃહ ઉદ્યોગના સ્વાગત છો સ્થાપક છો તથા આપ સાહિત્ય પરિષદના કારોબારી સભ્ય છો.
ધન્યવાદ ડોલીબેન તેમજ સ્મિતાબેન. અહીં આજ માનનીય પ્રશાંતજી હરતાલકર, આપનું મૂળ વતન અકોલા મહારાષ્ટ્ર છે. આપે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ છે. અભ્યાસ પૂર્ણ થતાં જ આપ પૂર્ણકાલીન પ્રચારકના સ્વરૂપમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કરેલ છે તથા આપ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વિદેશ વિભાગના કેન્દ્રીય મંત્રી તેમજ વિશ્વ માંગલ્ય સભાના પરામર્શદાતા તરીકેનું દાયિત્વ ધરાવો છો. આભાર ભક્તિબેન, કામિનીબેન. આજનો આ કાર્યક્રમ જેની આગેવાની હેઠળ તેમજ જેના માર્ગદર્શન હેઠળ થઈ રહ્યો છે તેવા મજબૂત નેતૃત્વ ધરાવનાર એવા સૌભાગ્યવતી શ્વેતાબેન જનકભાઈ ખાંડવાલા કે જેઓ સિલ્વરઓક યુનિવર્સિટીના ટ્રસ્ટી છે તથા એક દાયકાથી વધારે શિક્ષણ ક્ષેત્રે યોગદાન આપી રહ્યા છે તથા વિવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલો છો એવા આપનું હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વે નોંધ લેશો, માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થનાર છે, જેથી આપ સર્વેને નમ્ર વિનંતી મોબાઈલ સાયલેન્ટ અથવા સ્વિચ ઓફ મોડ પર રાખવો. માનનીય ગવર્નર શ્રીની ઉપસ્થિતિ દરમિયાન મોબાઈલથી ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફી એમના પ્રોટોકોલ પ્રમાણે નિષેધ છે, જે આપ સર્વેને નમ્ર વિનંતી છે. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા વિશ્વ માંગલ્ય સભા છેલ્લા એક દાયકાથી વધારે કાર્યરત છે તથા ભારતના જુદા જુદા પ્રાંતમાં કાર્ય કરી રહી છે. તો અમારી કામગીરીનો અહેવાલ દર્શાવતી એક ડોક્યુમેન્ટરી અમારી ટેકનિકલ ટીમે તૈયાર કરેલ છે. તો આવો આપ સર્વેને આ કામગીરીથી માહિતગાર કરીએ. ટેકનિકલ ટીમને વિનંતી કે તેઓ ટૂંક સમયમાં જલ્દમાં જલ્દ ડોક્યુમેન્ટરીનું પ્રસારણ કરે. ભારત માતા કી. વિશ્વ માંગલ્ય સભા કર્ણાવતી આયોજિત સ્નેહ સંમેલનમાં વિશેષ ઉપસ્થિત વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન વિશ્વ માંગલ્ય સભાના સભાચાર્ય પરમ પૂજનીય શ્રી જીતેન્દ્રનાથજી મહારાજ, સભાચાર્ય પરમ પૂજનીય સૌભાગ્યવતી રેણુકામાઈ, અખિલ ભારતીય અધ્યક્ષા સૌભાગ્યવતી રેખાદેવી ખંડેલવાલ, અખિલ ભારતીય સંગઠન પ્રમુખ શ્રી માનનીય ડૉક્ટર વૃષાલી જોશી, ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષા ડૉક્ટર ધારિણીબેન શુક્લા તથા આપણા બધા વચ્ચે ઉપસ્થિત પરામર્શદાતા માનનીય શ્રી પ્રશાંતજી હરતાકર, ક્ષેત્ર સંગઠન મંત્રી માનનીય શ્રી પૂજાબેન દેશમુખ તથા ઉપસ્થિત સમગ્ર ભારત દેશની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી અને ઉપસ્થિત માન્યવર. હું શ્વેતા જનક ખાંડવાલા આપ સૌનું સહર્ષ હાર્દિક અહીંયા સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વિશ્વ માંગલ્ય સભાનું કર્ણાવતી અને ગુજરાતમાં થયેલ પહેલા સ્નેહ સંમેલનમાં ભેગા થયા છીએ. તો બધાના મનમાં પ્રશ્ન તો હશે જ કે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હશે, વિશ્વ માંગલ્ય સભા શું છે, એની કાર્યપદ્ધતિ શું હશે અને સમાજ માટે એ આપણને ક્યાં ઉપયોગી છે. દેશનું શક્તિ કેન્દ્ર પરિવાર છે અને પરિવારનું કેન્દ્રબિંદુ માતા છે. જે ઘરમાં આદર્શ માતા એ ઘર સંસ્કૃતિ, પરિવાર, ઇતિહાસ, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે સમર્પિત હોય છે. આવી માતા પરિવારની દિશા અને દશા શું હોઈ શકે એનાથી અજાણ નથી હોતી અને માતૃત્વ ભાવનાનું નિર્માણ કરવું એ જ વિશ્વ માંગલ્ય સભાનો ઉદ્દેશ્ય છે. આ ઉદ્દેશ્યને સાર્થક કરવા હેતુથી પરમ પૂજનીય શ્રી જીતેન્દ્રનાથજી મહારાજે વિશ્વ માંગલ્ય ની સ્થાપના 19 જાન્યુઆરી 2010 કરી. મને જણાવતા ગર્વ થાય છે કે સમગ્ર દેશમાં 21 પ્રાંતોમાં 5,30,000થી પણ વધુ મહિલા આ પવિત્ર કામમાં જોડાયેલ છે. ગુજરાતમાં પણ આજે 8 જિલ્લામાં આ કાર્ય આગળ વધી રહ્યું છે. મને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે કે આપણી વચ્ચે વિશ્વ માંગલ્ય સભાનું કાર્ય કરતી 12 પૂર્ણ પ્રચારિકા ઉપસ્થિત છે,
જે બહેનોએ સંપૂર્ણ જીવન આ પવિત્ર અને આદર્શ કાર્યોને સમર્પિત કર્યું છે. આ બધી જ બહેનો ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરેલ છે, જે આપણા અને તમારા જેવા ઘરેલથી નીકળેલ છે. હૃદયપૂર્વક હું તમામ બહેનોને વંદન કરું છું. આપણા સૌના માટે સૌભાગ્ય અને હર્ષની વાત એ છે કે ગુજરાતના આત્મ સમાન કર્ણાવતી શહેરમાં 25, 26 અને 27 અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી બેઠક યોજાઈ અને આજે આપણે એના કારણે જ સ્નેહ સંમેલનનું આયોજન કરી શક્યા, કારણ કે બધા જ કાર્યકરો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે અને આત્મીયતા કેળવાય. આદર્શ માતૃત્વ ભાવ નિર્માણ કરવું એ દરેક માતાની જવાબદારી છે. આ દેશનું કામ છે, આ ઈશ્વરીય કામ છે, આ સનાતન ધર્મનું કામ છે, આ દરેક પરિવારનું કામ છે. એક માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે. એક સારો ડૉક્ટર, એન્જિનિયર કે વકીલ બનવા માટે 20 થી 25 વર્ષની તપસ્યા હોય છે, પણ જ્યારે એક માતા માટે એનો કોઈ અભ્યાસક્રમ અવેલેબલ નથી. અને પરંતુ વિશ્વ માંગલ્ય સભા એક સારી માતાનો અભ્યાસક્રમ પૂરો પાડે છે, જે અમારા માટેનું ગર્વની વાત છે. મા શબ્દ આપણા ધ્યાનમાં આવે છે ત્યારે શું વિચાર આવે છે? સમર્પણ, ત્યાગ, વાત્સલ્ય ભાવ એટલે શક્તિનું બિંદુ એટલે માં જ. આપણે સંસ્કૃતિ, પરંપરા, પરિવાર, ઇતિહાસ અને સંસ્કાર તથા દેશના મૂલ્યો આપણી માતા જ શીખે છે. અહીંયા બેઠેલા દરેક વ્યક્તિની એ જવાબદારી છે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજના આ સુંદર દિવસે આપણું સૌભાગ્ય છે કે માનનીય દેવવ્રતજી આચાર્ય, માનનીય રાજ્યપાલ એ આપણા નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરી અને સર્વે માતૃશક્તિને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. આપ સર્વેને વિનંતી છે ફરીવાર કે આપ માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના પ્રોટોકોલનું પ્લીઝ પાલન કરજો. મોબાઈલ ફોટોગ્રાફી તથા વિડીયોગ્રાફી નિષેધ છે, તેમજ રાજ્યપાલશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં પોતાનું સ્થાન પ્લીઝ નહીં છોડતા. માનનીય રાજ્યપાલશ્રી વિશ્વવિદ્યાલયના પટાંગણમાં પધારી ચૂક્યા છે તથા સભાગૃહમાં વિશ્વ માંગલ્ય સભાની માતૃશક્તિ માનનીય રાજ્યપાલશ્રીની ઋણી રહેશે કે અમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આજે આપે આપનો કિંમતી સમય આપ્યો. માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સ્વાગત અર્થે નવનિર્વાચિત કર્ણાવતીના અધ્યક્ષા સૌભાગ્યવતી શ્વેતાબેન જનકભાઈ ખાંડવાલાને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી માનનીય રાજ્યપાલશ્રીનું સ્વાગત કરો. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી માનનીય દેવવ્રતજીની હાજરીથી અમે અત્યંત સન્માનનીય લાગણી અનુભવીએ છીએ. તે આપણા બધા માટે ખૂબ જ આનંદ અને ગર્વની વાત છે કે તેઓ આપણા આમંત્રણનો સ્વીકાર કરી તેમનો કિંમતી સમય ફાળવી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા. આપણા રાજ્યપાલશ્રી એમના કાર્યો, કર્તવ્યનિષ્ઠા તથા આર્ય સમાજ માટે કરેલા કાર્યોના લીધે આપણા તથા આપણી આવનારી પેઢી માટે હંમેશા પથદર્શક રહ્યા છે. મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રી કુદરતી ખેતી, ગાય ઉછેર અને ગાયની જાતિ સુધારણા, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, સામાજિક સમરસતા, વ્યસન મુક્તિ, વૃક્ષારોપણ અને જળ સંરક્ષણ સંબંધી બાબતોમાં સતત કાર્યશીલ અને પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યા છે. મહામહિમ રાજ્યપાલશ્રી રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા, વૈદિક માનવીય મૂલ્યો અને ભારતીય સંસ્કૃતિને જનમાનસ સુધી પહોંચાડવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. વિશ્વ માંગલ્ય સભા આપને પ્રણામ કરે છે. સન્માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સ્વાગત પશ્ચાત વિશ્વ માંગલ્ય સભાના સભાચાર્ય આચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રી જીતેન્દ્રનાથજી મહારાજશ્રીને આશીર્વચન સંબોધિત કરવા માટે એમના ચરણોમાં વ્યાસપીઠ સમર્પિત કરું છું. સદગુરુ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મને નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરિયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ પ્રદ્યુમ્નાય અનિરુદ્ધાય નમઃ સંકર્ષણાય ચ. રત્નાકરા ધૌતપદામ હિમાલય કિરીટિનીમ બ્રહ્મરાજર્ષિ રત્નાઢ્યામ વંદે ભારત માતરમ.
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त। भारत माता की जय। इस विश्व मांगल्य सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के उपरांत और उपलक्ष्य में आज इस व्यासपीठ पर जो शोभायमान हैं वे हमारे प्रदेश के महामहिम माननीय परमादरणीय राज्यपाल महोदय जी, देवव्रत जी आचार्य जी, विश्व मांगल्य सभा की सभाचार्या सौभाग्यवती रेणुकामाई बाई, राष्ट्रीय अध्यक्षा मान्य रेखा देवी खंडेलवाल, उपस्थित संगठन की प्रचारिका तथा प्रमुख वृषाली जोशी जी, गुजरात की माननीय अध्यक्षा धारणीबेन, कर्णावती की अध्यक्षा श्वेताबेन खांडवाला, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और उपस्थित मेरे सम्मुख माता भगिनी सज्जन, आज बहुत सौभाग्य है कि भारतवर्ष की अनेकों प्रदेशों की और अपने जीवन की भूमिका राष्ट्रहित साकार करने वाले माननीय राज्यपाल महोदय जी, इनके सम्मुख और इनके साथ विश्व मांगल्य सभा आज अपना एक उत्सव मना रही है। विश्व का मंगल हो ऐसी कामना हमारे वेदों ने की है। वेदों की घोषणा है, ओम ब्रह्म में तुमाम मधु में तुमाम ब्रह्म में मधु में तुमाम यास्ते सोम प्रजावत्सो विसो अहम। ब्रह्म वही है, परमानंदी और परम प्रसिद्ध वही है, भगवान को और राष्ट्रभूमि को मान्य वही है जो ये संकल्प करता है कि जो यास्ते सोम प्रजावत्सो विसो अहम, पूरे देश की, विश्व की, चराचर की मानव सृष्टि सोम प्रजा हो, परमानंदी हो, संस्कार से अलंकृत हो, परम समाधानी हो, ऐसी घोषणा हमारे वेद करते हैं। माना कि हमारा सनातन वैदिक धर्म है और इस दुनिया के किसी भी धर्म की आयु 4-4.5 हजार साल से ज़्यादा नहीं। हमारा महाभारत का युद्ध ही 5200 साल पूर्व हुआ, तब भी हम थे, तब भगवान कृष्ण थे, हमारी द्वारिका थी, अर्जुन थे, सात्यकी थे, द्रोण थे, कर्ण थे। उसके पूर्व भगवान राम जी की जो वंश परंपरा चलती है वो 9 लाख साल पूर्व तक चलती है, तब भगवान रामचंद्र थे। उसी वंश से सगर राजा हुए, गंगा जी का अवतीर्ण होना हुआ और कई परम प्रताप विश्व शांति के, विश्व कल्याण के और प्रजा के समाधान के लिए हमने तब से किए हैं। यदि उस श्रृंखला को हम देखें तो इस स्वभावगत भारत भूमि का वैशिष्ट्य रहा कि विश्व परम सांस्कृतिक रहे, परम संतोषी रहे, परम समाधानी रहे और विश्व को कुछ देने वाला रहे। यह मानसिकता हमारी थी। इसी कारण हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये चिरायु रही और उसके कारण हम सब लोग आज यहाँ विराजमान है एक उच्च ध्येय के साथ। इतनी प्राचीन परंपरा, इतनी प्राचीन राष्ट्र की आयु, हम जब कभी सोचते हैं कि इसका मूल बिंदु क्या है, कहाँ से ये सब होता है, तो खोजते खोजते यहीं दिखता है कि भारतवर्ष की प्रस्थापित वो कुटुंब परंपरा, वो परिवार परंपरा जिसमें राम को जन्म दिया, जिसने कृष्ण को जन्म दिया, अत्रि ऋषि को जन्म दिया, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप ऋषि, ऐसे ऋषिवरों को जन्म दिया। इसी भूमि में माँ झांसी की रानी लक्ष्मी आई, इसी भूमि में सीता आई, इसी में अनसुईया आई, इसी में देवी अहल्या आई, इसी में आज राष्ट्रोद्धार करने वाले हमारे मंत्री प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी आए। इसी परंपरा में भारत को भूषित करने वाले कई महात्मा और कई माताएं, नागरिक, सज्जन, प्रबुद्ध पैदा होते हैं। ये भारत की विशाल परंपरा इस संस्कृति से आई है
और इसकी ही सोच विश्व मांगल्य सभा ने की। यह विचार किया कि इस भारत की विशाल प्रबुद्ध परंपरा का क्या होगा। हम तो मानते हैं कि जैसे कोई दुकान चले ना चले तो डेली नीड्स की दुकान लगाओ, चल जाती है। हमारे राष्ट्र की डेली नीड्स क्या है, हमारे संस्कृति की डेली नीड्स क्या है, हमारे धर्म की डेली नीड्स क्या है, हमारी परंपरा की डेली नीड्स क्या है, हमारे वंश की डेली नीड्स क्या है। वो है शुद्ध सात्विक पुरुषार्थी और परमार्थी बालक बालिकाओं का जन्म, जिनको भान है ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तुम वेद स वेदवित्, कि हमारा सबका मूल वो परमात्मा भगवान श्री हरि है, ब्रह्म है, जहां से हम आए। इसलिए भारत भूमि ब्रह्म भूमि है, उसमें वही गुण होना चाहिए जो परमात्मा में होते हैं। यदि किसी को यह प्रश्न पूछा क्यों विश्व मांगल्य सभा का अवतीर्ण होना हुआ, किसी को प्रश्न यदि हम पूछते हैं आज से 60-70 साल बाद आपका परिवार आज जैसा है वैसा ही रहेगा क्या, मैं आप ही को प्रश्न पूछता हूं, रहेगा? गारंटी देते हैं? फिर हम किस लिए जी रहे? हमारे कुटुंब व्यवस्था का, संस्कृति का, परंपरा का सत्यानाश तो नहीं होगा। जिसके ऊपर निर्भर है हमारे भारत की चिरंजीविता, राष्ट्र का अस्तित्व, देवदेश धर्म की परिभाषा और देवदेश धर्म के संस्कार, जिसमें राष्ट्र कार्य करने के लिए भी देवी अहिल्या ने अपने हाथ में शिवलिंग को धारण किया। राष्ट्र कार्य करने हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के गढ़ पर अपना रक्ताभिषेक करके हर हर महादेव कहा। राष्ट्र के लिए जो राणा प्रताप जय एकलिंग जी करके ललकार कर चल पड़े, क्या देव देश से अलग है? क्या देश की देव प्रेरणा नहीं? और हमने ये देखा 3 बीघा की जमीन उस समय वीपी सिंह के राज में जब बांग्लादेश को सौंपी गई, तुरंत 6 महीने के बाद वहां की हालात देखे तो साधु संतों का जीना मुश्किल हो गया था, राष्ट्र का गान करना मुश्किल हो गया था, समाज में हिंदू सांस्कृतिक उत्सव मनाना कठिन हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां देश अपना स्वाधीन नहीं रहा। जहां देश स्वाधीन नहीं होता वहां देव कारण नहीं रहता, वहां धर्म कारण नहीं रहता। इस कारण हम मानते हैं, विश्व मांगल्य सभा यह मानती है कि देव, देश और धर्म एक ही शक्ति के 3 स्वरूप है, परस्पर के आत्मा हैं। तीनों का रक्षण यदि वंश से हो, तीनों का रक्षण यदि राष्ट्र में हो, समाज से हो, संतों से हो, सब से हो, तो ये राष्ट्र अजेय चिरंजीवी रहेगा। सनातन वैदिक परंपरा का जय जयकार विश्व में गूंजता रहेगा। और इसी कारण देश को जैसा विजय का इतिहास है, कई बार देश को पराजय का भी इतिहास रहा है। 150 साल गुलामी रही, 1200 साल के आक्रमणों की टक्कर दी, किसके भरोसे? मुहिम पर जाने वाला, लड़ने वाला, समाज में उतरने वाला पौरुषी पुरुष था, तो घर को संभालने वाली, समाज को संभालने वाली, आंतरिक व्यवस्था को संभालने वाली, लौट कर आने वाले हमारे वीर सपूत का औक्षवान करने के लिए निरंजन थाली हाथ में लेने वाली घर की माता थी, बहन थी। और इसी कारण मातृस्थान का बलिष्ठ होना, पुरुषार्थी होना, सांस्कृतिक होना, बलशाली होना, परिपूर्ण होना अत्यावश्यक है। विश्व मांगल्य सभा ये सोचती है कि भारत को नित्य आवश्यकता है साधुओं की, संतों की, सत्पुरुषों की, समाज पुरुषों की, क्रांतिकारिकों की, सैनिकों की, प्रबुद्ध जनों की, साइंटिस्ट लोगों की, जिनके मस्तिष्क में कुछ भी कार्य करते हुए देश सर्वोपरि रहे, देव कारण सर्वोपरि रहे, समाज कारण सर्वोपरि रहे और सात्विक राजकारण भी सर्वोपरि रहे। उसके गुर सिखाने वाली कौन है? घर की मां ही तो है, घर की बहन ही तो है। विश्व मांगल्य सभा यह मानती है कि छोटी बच्ची 6 महीने की हो, 6 साल की हो, वो माता ही है, क्योंकि मातृपद यह वो पद है, उसका अर्थ ही है मातृ, माने उसको मातृणवत, उसको हल्का ना लिए जाए। जब मातृशक्ति को हल्का लिया जाता है, पितृसत्ता दूषित होती है। इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। और इस कारण मातृस्थान वह स्थान है जिसको हमारे परंपरा ने सर्वप्रथम कहा कि पहले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव, फिर सर्वदेवो भव। उस मातृस्थान की ताकत यदि हम पहचानने जाए तो आज भारत की आधी जनसंख्या स्त्रियों की है,
महिलाओं की है, आधा भारत महिला है, आदि शक्ति भी वो है, आधी शक्ति भी वो है। यदि घर वो संभाले, समाज में अपना जो दायित्व है वो यदि प्रस्थापित करे कि मैं कौन हूं, मैं वो हूं जो बालकों को जन्म भी दूंगी, गर्भ में भी रखूंगी, वहां भी संस्कार करूंगी, पौरुष भी लाऊंगी, क्योंकि टू हैव अ चिल्ड्रन इज नॉट क्वालिफिकेशन टू बी मदर और फादर। माँ पिता बनना माने बच्चे को पैदा करना यही नहीं है, वो तो कुत्ते बिल्ली को होते हैं। माँ तब होती है जब मैंने क्यों पैदा करना और उसको देने के लायक मुझ में क्या है, जब वो सोचती है तो वो माँ कहलाती है, तो वो पिता कहलाता है। पूर्वी हम पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में ये देखते थे कि ब्याह का माता चयन, स्त्री चयन करती थी अपने पौरुष और अपने पति का, उसके आधार पर वो चयन करती थी कि वो मेरे देव देश धर्म कारण, समाज कारण, वंश कारण, राष्ट्र कारण के लिए अनुकूल है कि नहीं, वो देखा जाता था। ये अनुकूलता को वो पहले देखती थी, उसके बाद पुराणों में जाओ कि वेदों में जाओ, कई बार आपको ये दिखेगा संतान प्राप्ति के लिए पूर्व तपस्या की है, सोचा है, उसके बाद में संतान को जन्म दिया है। तब जन्म दिए जाते थे, आज जन्म हो जाते हैं। यही फर्क है। जिस जन्म देने को उद्देश्य होता है, परिपालन को उद्देश्य होता है, जब महान उद्देश्य मस्तिष्क में होते हैं तभी वंश साकार होता है, घर साकार होता है, समाज साकार होता है, तभी देश राष्ट्र साकार होता है और हम विश्व को साकार कर सकते हैं उस चेतना से जिसमें परस्परम देवो भव और सर्व कल्याणमयी सत्ता का उद्घोष हम कर सकते हैं। विश्व मांगल्य सभा ने यही सोचा, इस कारण घर में ऐसी स्त्री रहे, घर में ऐसी बालिका रहे, घर में ऐसी बच्ची हो, घर में ऐसी माता हो कि जो राष्ट्रहित अपने घर में रहते हुए संभाले, देव देश धर्म कारण की परिभाषा समझे। वैसी लड़की हो जो कॉलेज कैंपस में भी जाती है, आधुनिक काल में अपना पौरुष, अपनी विद्या, अपने गुण प्रकट तो करती है, लेकिन उसका पूर्ण विनियोग देव देश धर्म कारण के लिए लगाए। और इसी कारण विश्व मांगल्य सभा ने 3 क्षेत्र में अपने को चुना, कार्य का चयन किया। पहले बालकों के लिए आज महामहिम राज्यपाल जी को मैं विदित करता हूं, 47,000 बालक आज देश के सुबह उठकर विश्व मांगल्य सभा के कारण बाल संस्कार केंद्रों में शिक्षा पा रहे। उनकी माता बहनें छोड़ने आती है कि ये बच्चा आपके हवाले करते हैं, क्योंकि स्कूल से ना देश कारण सिखाया जाता, ना धर्म कारण सिखाया जाता। और आज परिस्थिति ऐसी है कि सीखने वाले को प्रश्न पूछा जाता है, हम यदि धर्म तत्व रहे, सांस्कृतिक तत्व रहे, उसको रखे, तो पूछते इसको साइंस का कुछ आधार है क्या? विश्व मांगल्य सभा ये मानती है, समाज को पूछती है कि साइंस का आधार पूछने वालों, दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में विज्ञान को कोई पर्यायवाची शब्द है क्या? है? शास्त्र कहते हैं, साइंस कहते हैं, साइंस माने शास्त्र होता है। शासनात् त्रायति इति शास्त्रः, ऐसे करो वैसे करो तो ये कार्य हो जाएगा, उससे शास्त्र कहते हैं। आज तक दुनिया विज्ञान को प्रस्थापित पर्यायवाची शब्द नहीं दे पाई। 4 लाख साल पूर्व विज्ञान की परिभाषा वेदों ने समझाई। ज्ञानम परम गुह्यम में पहले गुरु, पहले शिष्य बात करते थे, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यं तदंगंच गृहाण गदितम मया, ये शिष्य गुरु को कहता है। फिर यावान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मन अनुग्रहात्, हे गुरुवर मुझे वो ज्ञान दो, परम गुह्य ज्ञान दो, परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम, जिसमें विज्ञान हो, स रहस्यं तदंगंच, उसके रहस्य बताओ, गृहाण गदितम मया, यावान हम यथा भाव, मैं किस भाव से ये इसका अभ्यास करूं, मैं रहूं, यद रूप गुण कर्म कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, रूप गुण कर्म, तथैव तत्व विज्ञानम, प्रिंसिपल ऑफ द विज्ञान, उसमें जो है मुझे कृपा पूर्वक दो। इस विज्ञान की परिभाषा 4 लाख वर्ष पूर्व बंधुओं अपने भारत में विराजमान थी। आज बालक प्रश्न पूछता है, आज कोई भी प्रश्न पूछता है कि ये क्यों है, उसका उत्तर देने लायक माता इस सृष्टि में बनाए, भारतवर्ष में साकार करे। इस माध्यम से ही, इस विचार से ही विश्व मांगल्य सभा अपना विस्फोट कार्य का इस देश में कर रही। माननीय महामहिम जी, आपको हम विदित करना चाहते हैं,
2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं, वैसे तो 32 प्रदेशों में कार्यकारिणी बनी है, 22 प्रदेशों में, लेकिन 32 प्रदेशों में मिलकर समितियां बनी है। 2.5 लाख महिलाएं आज देश में विश्व मांगल्य सभा का दायित्व लेकर काम करके आने वाले 2 साल में भारत के सभी प्रदेशों को व्याप्त करेगी। और इस कारण हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में इस भारतवर्ष में, तो मैं ये बात जो कह रहा था कि 3 टप्पों में विश्व मांगल्य सभा काम करती है कि बालकों में भी ये सब संस्कार, गुण, वैशिष्ट्य और ज्ञान जाए, विश्व मांगल्य बाल संस्कार सभा, और दूसरी है विश्व मांगल्य छात्र सभा। विश्व मांगल्य छात्र सभा के माध्यम से आज JNU में भी हमारा काम चलता है। आज विश्वविद्यालय जितने भारत में हैं, उन सभी भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में ये कार्य सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तो नहीं कर सकते, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर भारत की धरोहर, अतीत को और तेजस्वी इतिहास को बताने के व्यासपीठ निर्माण करने की चेष्टा विश्व मांगल्य सभा ऐसे गति से कर रही है कि 5 साल में भारत के सभी विश्वविद्यालयों में विश्व मांगल्य सभा का काम पूर्ण व्याप्त हो जाएगा। तो छात्र सभा के माध्यम से ये काम करेंगे और अपनी छात्र अवस्था के बाद जब वो प्रौढ़ा होती है तो विश्व मांगल्य सभा के माध्यम से हमारे जो जनपद है वहाँ के 3-3 हजार संख्या के मंडल बनाकर उस क्षेत्र में 3-3 हजार के क्षेत्र की महिलाओं से सदाचार सभा, ये लास्ट यूनिट निर्माण होता है। आज भारत के 32 प्रदेशों में सदाचार सभा व्याप्त हो रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि विश्व मांगल्य सभा के लिए हमारे भारतवर्ष की तरुणियां पूर्णकालिक प्रचारक इस नाते अपना शिक्षा पूर्ण होने के बाद में निकल रही है। अभी आज भी घोषणा हुई और हर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पूर्णकालिक प्रचारक इस नाते इस कार्य से प्रेरित होकर जो आ रही, इससे अनुमान लगता है कि आने वाले 10 साल में मातृशक्ति के 65 करोड़ मातृशक्ति की जनसंख्या से जिसको राष्ट्रहित, कुटुंब हित, वंश हित, समाज हित की परिभाषा समझ जाएगी, उसके बाद भारत के लिए शांति, क्रांति और भारत के परमोच्च अवस्था के निर्माण में भारतवर्ष की पूरी मातृसत्ता लगेगी, ऐसा विश्वास इसके द्वारा हम दे सकते हैं। तो एक संगठन, एक विशाल संस्कार की योजना, राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने की एक बहुत बड़ा देने का आंदोलन और उसके साथ साथ ऋषि मुनि संत सत्पुरुष और वंश की प्रबुद्ध मातृ पितृ सत्ता जो काम करती थी, वही काम आज विश्व मांगल्य सभा पूरे भारतवर्ष में साकार कर रही है। और इस कारण आज गुजरात में, आज तो कर्णावती में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, पूरा भारतवर्ष की प्रतिनिधि यहां आई थी। हम जानते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय, हम गुवाहाटी के व्यासपीठ पर भी आपके संग थे और आपका प्रबुद्ध काम, आपके विचार और आपका मार्गदर्शन इस पूरे कार्य में बड़ा महत्व रखता है और उससे बहुत बड़ी एक विचार ज्ञान की और मार्गदर्शन की आभा विश्व मांगल्य सभा के लिए उपलब्ध होगी। और इस कारण विश्व मांगल्य सभा का यह कार्य आप तक विदित करना, इसका एक अवसर हम पाना चाहते थे। वो अवसर आपने कृपापूर्वक, बड़े अनुग्रहतापूर्वक हमें प्राप्त कर दिया। हम यही चाहेंगे कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य को और तेजस्वी करने के लिए हम आपसे प्रेरणा चाहते हैं। और भारतवर्ष में ये पूरा काम देखकर आज मार्गदर्शन करने वाले कई संत समुदाय आज तक जो अपने आश्रम संप्रदाय में थे, आज एक बहुत बड़ा ये विश्व मांगल्य सभा का व्यासपीठ ऐसा हो गया कि 2012 में हमने 660 संतों की उपस्थिति में, जिसमें माननीय सरसंघ चालक जी थे, माननीय सभी संत महात्मा उपस्थित थे, वो अमरावती में संपन्न हुआ और सकारण संपन्न हुआ क्योंकि राष्ट्रव्यापी दौरा करके और राष्ट्रव्यापी एक सर्वेक्षण करके उसको साकार किया गया था। 2.5 लाख उपस्थिति में जनता की भारत के कोने कोने से वहां पर आई थी। रेशिमबाग के प्रांगण में 2016 में विश्व का जो भारत के अनुबंध से यदि हम कहें तो सर्वाधिक संख्या का मातृ सम्मेलन साकार हुआ। 1118 संतों की उपस्थिति में भारत के कई संतों ने प्रवास करके भारत की सीमाओं का भी एक प्रवास किया था।
विश्व मांगल्य सभा से वो प्रेरित थे और भारत के सीमा से सटे हुए गांव की मातृसत्ताओं को जगाने का प्रयास हमने किया और उस कारण विश्व मांगल्य सभा के भिन्न भिन्न विभाग कार्य करते रहे। धर्म शिक्षा विभाग धर्म प्रसार का काम करता है, वनवासी क्षेत्र के सेवा का विभाग वनवासी क्षेत्र में प्रवास करता है, विश्व मांगल्य सभा का जन प्रभाग वो सामान्य जनता में विश्व मांगल्य सभा की इस प्रेरणा से जन जन तक जाता है। विश्व मांगल्य छात्र सभा, विश्व मांगल्य बाल संस्कार सभा और विश्व मांगल्य सभा का प्रौढ़ा का काम विश्व मांगल्य सभा साकार कर रही है और इस कारण भारतवर्ष की 65 करोड़ महिला हमारी टारगेट है, जिसको एक मातृत्व का अधिकार और पुरुषार्थ सिखाए, स्त्री जीवन का वैशिष्ट्य सिखाए, मत देने वाली माता होती है, सबको निर्देश देने वाली माता होती है। अगर माँ जिजा ने अपने गोदी में लेकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया होता तो आज छत्रपति पैदा ना होते। आखिरी का उदाहरण देके मैं रुकूंगा। विश्व मांगल्य सभा कई उदाहरण ऐसे राष्ट्र के सामने अभ्यास प्रस्तुत करती है। जैसे जब कुंभ मेला था त्र्यंबक में, तब माँ जिजा और शाहजी महाराज वहाँ गए। उस समय पूछा कि देश के लिए संतान चाहिए, धर्म के लिए संतान चाहिए, देव कारण के लिए संतान चाहिए। तो उस समय संतों ने उनको कहा था कि जाओ त्र्यंबक राज को शरणागत हो जाओ, यदि बेटी होती है तो नाम पार्वती भवानी का रखो, बेटा होता है तो भगवान शंकर का नाम रखो। संतों की आज्ञा से उन्होंने, उनके हृदय में आंतरिक प्रेरणा थी तो वे गए और जब बेटा हुआ तो नाम शिवबा रखा। जब वो शिवबा अपने गोदी में माँ के खेलता था तो माँ ने उसे द्रोण पढ़ाया, सात्यकी पढ़ाया, राणा प्रताप पढ़ाया, अर्जुन पढ़ाया, राम पढ़ाए, कृष्ण पढ़ाए, भारत का अतीत इतिहास और आक्रमणकारियों की रीति नीति को समझाया, भारत के उद्धार की प्रेरणा दी। जब 8वें वर्ष के वो हुए, माँ को कहने लगे, माँ आज जन्मदिन है, मैं क्या दूँ? तब माँ ने कहा, खिड़की खोल, सामने जो हरा झंडा दिखता है उसे हटाकर मेरे राष्ट्र का भगवा वहां पर प्रतिस्थापित करो। ऐसे सिखाने वाली मां नहीं रही, ऐसे प्रेरणा देने वाली मां नहीं रही। वो मां का निर्माण विश्व मांगल्य सभा चाहती है। उसके साथ साथ वो पितृसत्ता को भी सिखाए। जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे चुनवा दिए जा रहे थे, उस समय वो नहीं माने तो फर्जी पत्र भेजा गया गुरु गोविंद सिंह जी को। फर्जी पत्र में लिखा था कि पिताजी हमें बचाइए, अन्यथा हमें मजहब छोड़ना पड़ेगा, हमें जीवन दान दीजिए। तो उसको फाड़ कर गुरु गोविंद सिंह जी कहे कि यदि ये ऐसा कहने वाले बच्चे हैं तो मेरे संस्कार पर मेरा विश्वास है, मेरा खून उनमें है, ये पत्र फर्जी है, वे ऐसा कह ही नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो ये गुरु गोविंद सिंह अपना सर कलम करके बादशाह के दहलीज पे रख देगा। ये पौरुष बताने वाला पिता नहीं है। ऐसे माताओं की निर्मिति, ऐसे पिताओं की निर्मिति, ऐसे स्त्रियों की निर्मिति, ऐसे बालिकाओं की निर्मिति और उनके साथ साथ बाल संस्कार शिविर में हम भेद नहीं करते बालक बालिकाओं का। इन सब की निर्मिति करके आने वाले समय पे भारत के उत्थान के लिए, धर्म के चिरंजीविता के लिए, देव कारण के जय जयकार के लिए और हमारा वंश जिसकी आयु हम बता नहीं सकते। गीता के 15वें अध्याय में गोपाल कृष्ण ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधश्या का अश्वत्थम प्राहुरव्यम, कि आप सबका मूल ऊपर है। करोड़ों साल की हमारी आयु वंश की है। यदि आज हम बोलते हैं कि हम 60-70 साल बाद हमारा कुटुंब कैसा होगा हमें नहीं पता, तो देश हमारे वंश की गारंटी देंगे नहीं तो देश की और धर्म की क्या देंगे? सालों साल, हजारों साल हम परस्पर को कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हम ये राष्ट्र के लिए क्यों नहीं बोल सकते? हम ये धर्म के लिए क्यों नहीं बोल सकते? हम हमारे संस्कृति के लिए क्यों नहीं बोल सकते? हमारे वंश के लिए क्यों नहीं बोल सकते? उसकी भूमिका निर्धारण करने के लिए, वो होने के लिए विश्व मांगल्य सभा का प्रण है, कार्य व्यवस्था है, विश्व मांगल्य सभा की सैद्धांतिक भूमिका है, विश्व मांगल्य सभा का वो विचार है, विश्व मांगल्य सभा की कार्य की पद्धति है और उसके माध्यम से ये राष्ट्र को चिरायु करना, इस राष्ट्र की गुरुत्व के सभी सांस्कृतिक तेजस्वी पुरुषार्थी विचारों को चिरंजीवी करना, इस विचार के साथ कई प्रचारक, कई दायित्वधारी कार्यकर्ता और पूरे भारतवर्ष का सम्मिलन इस कार्य में करने हेतु
विश्व मांगल्य सभा अहर्निश प्रयास कर रही है और इसके लिए साधु संतों के, जनता जनार्दन के आशीर्वाद भी चाहिए और महामहिम राज्यपाल जी महोदय आपका मार्गदर्शन भी चाहिए। उस मार्गदर्शन के हेतु प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। પ્રણામ ગુરુજી। આપની પ્રેરણાથી આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે વિશ્વ માંગલ્ય સભામાં 12 પૂર્ણકાલીન પ્રચારિકાઓ કે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન વિશ્વ માંગલ્યને સમર્પિત કર્યું છે તેઓ પણ આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। ગુરુજી, આ પ્રેરણા માટે આપને પ્રણામ। વિશ્વ માંગલ્ય સભાના આ વ્યાસપીઠ પર ગુજરાતના સન્માનનીય પ્રથમ નાગરિક એવા માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આપશ્રીને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આજની સર્વે નવનિર્મિત કર્ણાવતી શહેરની કાર્યકર્તાઓ તથા અમને સૌને માર્ગદર્શન આપો। ધન્યવાદ, પ્રણામ। सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय श्री जितेंद्र नाथ महाराज जी, सभाचार्य विश्व मांगल्य सभा, आदरणीय श्रीमती रेखा देवी खंडेलवाल जी, अखिल भारतीय अध्यक्षा विश्व मांगल्य सभा, आदरणीय श्रीमती रेणुका माई, सभाचार्य विश्व मांगल्य सभा, आदरणीय डॉक्टर वृषाली जोशी जी, अखिल भारतीय संगठन प्रमुख, आदरणीय डॉक्टर धारिणी शुक्ल जी, अध्यक्षा गुजरात विश्व मांगल्य सभा, आदरणीय श्रीमती श्वेता जनक खांडवाला जी, अध्यक्षा कर्णावती विश्व मांगल्य सभा, और उपस्थित शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित महानुभाव और श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवी और सज्जनों, आज आपके बीच में आके और माननीय श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज के विचार सुनकर मुझे बहुत अपार प्रसन्नता हुई कि नारी सशक्तिकरण की बात जो देश में चलती है वो सशक्तिकरण की स्वरूप में चल रहा है, उसको मैं बड़ा कम समझ पा रहा था। सही अर्थों में प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान ऋषि मुनियों, साधु संतों ने भारतीय नारी का जो स्वरूप की कल्पना की है वो इतनी ऊंची है, वो इतनी ऊंची है कि उसके आगे ऊंचाई खत्म हो जाती है। भाइयों और बहनों, जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो वहाँ विद्या का आदर्श सरस्वती में माना जाता है, वीरता का आदर्श दुर्गा में माना जाता है और भगवान का आदर्श जगत जननी में माना जाता है। तो भारतीय नारी के बारे में आदि काल से जो संकल्पना है वो इतनी ऊंची है कि वेद कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। कहते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा है, लेकिन इस सृष्टि को चलाने वाली मातृशक्ति वो ब्रह्मा का दूसरा स्वरूप है। यदि मां ना हो तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। परमात्मा ने तो एक बार बना दिया, लेकिन इसको चलाने वाला काम तो मां के द्वारा होता है। और हमारे शास्त्रों में माता के लिए इतना इतना व्यापक साहित्य है कि इसके उपकार जितने संतानों के ऊपर हैं उतने किसी प्राणी के हो नहीं सकते। कहते हैं पुत्रो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता का हृदय
अपनी संतानों के लिए इतना उदार होता है कि अपने संतान के लिए कितना भी बड़ा बलिदान मां कर सकती है। इसलिए शास्त्र के लोगों ने कहा कि आने वाली संतानों को मां के प्रति मातृदेवो भव, मां देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि ये जीवन देती है, जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है। तो मां के उपकार संतानों पर सबसे बड़े होते हैं। और विश्व मांगल्य सभा का जो मूल केंद्र बिंदु है वो है कि इस समय हमारी मातृशक्ति अपने स्वरूप को पहचाने, भारतीय जीवन मूल्यों को समझे, उसका जो दायित्व है उसके प्रति उसका बोध बना रहना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बहुत तेजी से विदेशी कल्चर की ओर दौड़ रहे हैं और विदेशों में जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका और हमारा मेल नहीं खाता। वहाँ भोगवादी संस्कृति है और वो केवल इस जन्म को लेकर चलते हैं, अगले की कल्पना वहाँ नहीं है। तो उनका उद्देश्य क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, ये जिंदगी पता नहीं फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सोच के साथ वो जीते हैं। और हम लोग बहुत लंबे चले हुए, बहुत दूर जाना है, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चिंतन भारतीय ऋषियों का, वैदिक परंपरा का चिंतन है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ माताओं का स्थान आदिकाल से, वैदिक काल से, जैसे आदरणीय महाराज श्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम इतिहास ही भूल गए। भूल नहीं गए, भुला दिया गया। हमारा इतिहास सुनियोजित ढंग से भुलाया गया। मुसलमान और विदेशी आक्रांता जो इस देश में आए, बाहर से जो आए, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को जलाने का काम किया। अंग्रेज ने उनको जलाया नहीं, अपितु उनको बदलने का काम किया। हमारे इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत करके हमारे गौरव को समाप्त करने का काम किया। वो बहुत चालाक और धूर्त थे। लेकिन यदि इतिहास को आप देखें तो आपने, महाराज श्री ने बहुत बड़ी बात कही। इस समय मानव सभ्यता में जितने धर्मों की कल्पना की गई है, कितने भी धर्मों की, इनका इतिहास किसी का भी 4000 साल से पुराना नहीं। आया ना? अरे बोलो तो सही, मुंह बांधे बैठे हो। मैं तो सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना, उत्तर देना, ठीक है? तो आप इन्हीं से पूछ लो, उन्हीं से पूछो जो जिस धर्म मजहब को लिए बैठे हैं, उन्हीं से पूछो इस धरती पे आए तुम्हें कितने दिन हुए, बताओगे? सबसे पुराना मत यदि इस देश में मानते हैं तो वो पारसी मत है और जरदुश्त उनके गुरु हैं, जिंदाबस्ता उनका धर्म पुस्तक है। उसकी उत्पत्ति का काल लगभग 3500 साल पुराना है और थोड़ा ऊपर ले जाओ। और जितने मजहब हमने बनाए हैं इनका काल इन्हीं से पूछो। मुस्लिम बंधुओं से पूछो तुम्हें इस धरती पर आए कितने साल हुए, बताओ। वो स्वयं बताते हैं धर्म पुस्तक हमारा कुरान है और हमारे जो इस धर्म के संस्थापक हैं वो मोहम्मद साहिब जी हैं और उनकी उत्पत्ति को धरती पर आए हुए लगभग 1400 वर्ष हुए। आया ना? इतने ही है ना?
तो 1400 बरस से पहले, 1500 बरस से पहले धरती पे वो नहीं थे। अब ईसाइयों से पूछ लो तुम्हें कितने साल हो गए, उनका तो ईस्वी चलता है ना। अब 2000 कितना हो गया है जी? 2022। वो मैं तो नहीं कह रहा, वही कह रहे हैं ना। तो 2022 वर्ष से पहले उनका धर्म पुस्तक बाइबिल है और उनका संस्थापक यीशु मसीह हैं। और वो स्वयं कहते हैं 2022 से पहले दुनिया के किसी कोने पर भी वो नहीं थे। गलत या ठीक? आप जैन से भी पूछ लो, बौद्ध से भी पूछ लो, महावीर स्वामी से पहले जैन नहीं थे, महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध नहीं थे। और सिखों से भी, बंधुओं से पूछो, 400 बरस से पहले वो भी नहीं थे। क्यों साहब, फिर कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य मीन्स श्रेष्ठ। आपने रामायण को पढ़ा ना, सुना भी, देखा भी। तो जब भी सीता राम को संबोधित करती तो हे आर्य, हे आर्य पुत्र, महाभारत में भी और रामायण में भी यही तो ना। तो आर्य मीन्स श्रेष्ठ लोग। तो वो इस समस्त ब्रह्मांड पर एक विचारधारा से चलते थे और उनका धर्म होता था वैदिक। वैदिक मतलब वेदों से जो चला हुआ है। अब सृष्टि की उत्पत्ति की बात आओ। अब इनकी उत्पत्ति का तो काल आपने देख लिया, महाराज जी ने शुरू कर दी, वहीं से मेरे को ध्यान में आया, इस बात को बढ़ा लें। अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं, वर्तमान साइंटिस्ट कहते हैं, इस दुनिया को बने लगभग 2 अरब साल हो गए। कितने? 2 अरब साल। वो लगभग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहां लगभग नहीं है। यहां तो ऋषि मुनि बिल्कुल सत्य के आधार पर गणित के अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति का संख्या बताते हैं। और वो संख्या क्या है? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष दुनिया को बने हो गए। ये है भारतीय सृष्टि उत्पत्ति की गणना, और ये बिल्कुल साइंटिफिक गणना है। जिस न्यूटन को कहते हैं उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, अरे आर्यभट्ट हजारों साल पहले वो काम कर चुके हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में उनको मिटा दिया गया। हमारे भारद्वाज ऋषि, जिसने विमान शास्त्र लिखा, विमान बनाने की टेक्निक हजारों साल पहले उन्होंने दी। ये अब कहते हैं हमने विमान। अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, वही पढ़े लिखे इतने विशाल शहर के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जो चीज होगी उसी का नाम होगा ना? जो चीज ही नहीं है उसका नाम कैसे होगा बताओ? सब तैयार है ना इस बात को? तो इस देश में रामायण काल में विमान का वर्णन है, पुष्पक विमान तो था, तभी तो नाम था। लेकिन संस्कृत भाषा में ताले की संस्कृत नहीं थी। ध्यान करो, ताले की ताला लगाते ना घर पर, ताले की संस्कृत भाषा में शब्द था ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां चोर थे ही नहीं। सीधी बात है, नाम तो उसी का रखेंगे ना जो चीज होगी। तो आप एक, आज समय का अभाव है, इतना विशाल भंडार हमारे यहाँ, इतना विशाल। और इस वैदिक परंपरा में जिस वेद को सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनके हृत प्रतिष्ठम जदजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वेद में लिखा, परमात्मा ने उन ऋषियों के हृदय प्रदेश में 4 वेदों का ज्ञान दिया। और वो ज्ञान परंपरा लाखों वर्षों से चलती हुई विभिन्न शास्त्रों के रूप में परिवर्तित हुई,
धर्म ग्रंथों के रूप में परिवर्तित हुई, उपनिषदों के रूप में परिवर्तित हुई, शास्त्रों के रूप में परिवर्तित हुई। लेकिन जैसे गंगा गंगोत्री से शुद्ध निर्मल जल लेकर के निकलती है, ऐसे ही वेद की धारा पवित्र सृष्टि के आदि से चली और वो विशाल ज्ञान का भंडार यूं फैलता चला गया। और उन्हीं वेदों में नारी जाति का जो सम्मान दिया गया है वो अद्भुत है। इसको मां कहा है। एक होती है जननी और एक होती है मां, दोनों में अंतर है। ध्यान करो मेरी माताएं विशेष करके। जननी वो है जो बालक को जन्म देती है, और जन्म गाय भी देती है, भैंस भी देती है, घोड़ा गधा जितनी भी माताएं हैं सब जननी हैं, क्योंकि वो जन्म देती हैं। लेकिन यास काचारी से निरुक्त में पूछा माता कस्मात्, माता कौन है? वहां लिखा माता निर्माता भवती। मां वो है जो बच्चे को जन्म भी देती है और उसके निर्माण का जिम्मा भी देती, उसका नाम माता है। समझे? गाय भैंस बच्चे को जन्म देगी, निर्माण का ठेका नहीं लेती। अन्य जीव जंतु बच्चे को जन्म देती माताएं, लेकिन वो कैसा संस्कारवान बने इसका उपदेश नहीं देती। लेकिन मां के लिए हमारे निरुक्तकार ने कहा मां वो है जो बच्चे को जन्म दे करके उसको राष्ट्र का उत्तम प्रतिनिधि बनाती है, परिवार का गौरव बनाती है, आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा स्रोत बनाती है। वो राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी है। ऐसे बालक का निर्माण मां के द्वारा होता है। और वो संस्कार हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मनुष्य का पहला गुरु मां है और दूसरा गुरु पिता है और तीसरा गुरु उसका आचार्य अध्यापक शिक्षक है। धन्य है वो संतान जिनको ये तीनों जितेंद्रिय परोपकारी धर्मात्मा मिलते हैं। तो ऐसे बालकों का निर्माण होकर राष्ट्रों के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। आज हमें दुख इस बात का होता है कि हम इतने ज्ञान के पुंज, ऋषियों का ये देश, वेदों की संस्कृति का देश, इतना ज्ञान का भंडार, इसके बावजूद हम उस विदेशी कल्चर के पीछे दौड़ रहे हैं जिसमें इस मानवीय मूल्यों के लिए कोई जगह ही नहीं। जहां एक मां सिगरेट पीती हो, जो एक मां दारू पीती हो, जिस मां को बच्चे के भविष्य के बारे में संस्कार व्यवस्था की जानकारी ना हो, वो राष्ट्र क्या बनेगा, वो दुनिया क्या बनेगी, वहां आतंकवाद ही पैदा होगा। वहां आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी का रास्ता देखना पड़ेगा। वहां खून खराबा होगा, वहां शांति हो ही नहीं सकती। अरे मेरे प्यारे देश की बहनों और माताओं, हमारी माँ कैसी होती थी? मैं छोटा बालक था, मेरी माँ गांव में नीचे बैठकर चूल्हे पर पहली रोटी बनाती थी, हमें बुलाती थी, ले बेटे ये आटा लेकर के जाओ, चींटियों को डाल के आओ, ये रोटी लेके आओ, छत पे कौवे पक्षियों को डाल के आओ, ये रोटी पकड़ो, गौ माता को दे के आओ। मैं पूछता हूं, लोग कहते हैं भारत आज सहिष्णु हो गया। क्या इस सोच की मां के पले हुए बेटे असहिष्णु हो सकते हैं? असहिष्णु वो होंगे जो एक बालक को प्रेरणा दे, ये चाकू ले, ये बकरा ले, इसको काट। सहिष्णुता इस भारतीय कल्चर में, इस देश की मातृ जो वैदिक परंपराओं से हैं, वो कभी असहिष्णु हो नहीं सकती। वो तो प्राणी मात्र में अपने रूप को देखती है। और हमारे वेद में क्या लिखा? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। वेद में भाई और बहनों प्रश्नोत्तर होते हैं। एक भक्त कहता, मेरे भगवान मैं तुझे पाना चाहता हूं,
तू बता कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, कहाँ मिलेगा तू बता तो दे मेरे को। तो वहां उत्तर मिलता कि मैं किन को मिलता हूं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे की आत्मा को अपनी अंदर देखता है और अपनी आत्मा को दूसरे में देखता है, ऐसा व्यक्ति संदेहों से ऊपर उठता है और मेरे और मनुष्य के बीच की दीवार इस सोच के बाद ढह जाती है और हम साक्षात ऐसे मिलते हैं जैसे एक दूसरे से माँ और बेटा मिलते हैं। इस सोच की संस्कृति में हम पले लोग। और क्या पढ़ाया गया वेदों में? सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कर्णो में अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवागन्य। क्या ये देश असहिष्णु हो सकता है? यहां लिखा है कि ओ लोगो, हे मनुष्यो, तुम ऐसे एक दूसरे से प्यार करो। कैसे? जैसे नया ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती। गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके ऊपर लिपटे मल को जीभा से चाट जाती है और प्रसव वेदना को भूल जाती है। ये उपदेश वेद का है। तुम प्राणी मात्र से ऐसे प्यार करो जैसे नई प्रसूता गाय अपने पैदा किए बच्चे से प्यार करती है। दुनिया में ये उपदेश कोई कल्पना कर सकता है? जिन बाड़ों में हम बटे हुए हैं वहां कहीं ये इतना उन्नत चिंतन मिल सकता है कि दूसरे की आत्मा को अपनी में देखो और अपनी को उसमें देखो, तो वहां दीवार खत्म, दूरियां खत्म। वहां कभी आतंकवाद हो नहीं सकता, खून खराबा हो नहीं सकता, दूरियां बन नहीं सकती। और ये सारा उपदेश इस देश की विदुषी माताएं अपने बच्चे को पढ़ाया करती थी। यहाँ लोपा, मुद्रा, सरसा, विश्वगारा, मैत्रेयी, गार्गी, अनुसुईया, अरे इस देश की लाखों बराबर नारियां थी जो वेदों पर समान अधिकार रखती थी। ध्यान करो, ये जो भेदभाव है ना स्त्री पुरुष का, और ये जात पात में जो हम मनुष्यों को बांटा, ये हमारे वेदों के अर्थों को अनर्थ करके किया गया। यहां वर्ण व्यवस्था कर्म परक थी, जन्म परक नहीं होती थी। जब से जन्म परक की तब से मानव मानव बटा और हमारे में कमजोरियां आई। भाई और बहनों, वेदों के पढ़ने वाली स्त्री ऋषिकाएं इतनी विदुषी थी कि महर्षि याज्ञवल्क्य के सामने गार्गी ने इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि वो उत्तर नहीं दे पाए। इतनी विदुषी इस देश की नारियां होती थी। जैसे ऋषि वेदों पर अधिकार रखते थे, वैसे नारियां भी वेदों पर पूर्ण अधिकार रखती थी। एक घटना सुनाता हूं मैं। राजा जनक अपने समय के महाविद्वान राजा थे। वो बड़े आध्यात्मिक राजा थे। बड़े बड़े ऋषि लोगों के जो प्रश्न उलझ जाते थे अध्यात्म वेद पे, तो जंगलों को छोड़कर राजा जनक के पास आकर के उनका समाधान करते थे। इतने प्रबुद्ध विद्वान महर्षि जनक थे। क्या नाम? राजा जनक थे। तो एक बार उनके राज्य में एक युवती आई, सुलभा उसका नाम लिखा, जवान लड़की 20-24 साल की, और गेरवे वस्त्र पहने हुए सन्यासी वाले। और उसने आकर कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों पर समाधान चाहा। तो राजा जनक ने उससे पूछा, बेटी मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इस भरी जवानी में जब तूने गृहस्थ आश्रम में जाकर अपना घर बसाना चाहिए था, तू ऐसी युवावस्था में गेरवे वस्त्र कैसे पहने हुई है? सन्यासिनी कैसे बन गई? तो उस समय सुलभा कहती, राजन मैंने कुछ प्रश्नों को लेकर शास्त्रार्थ के लिए पूर्व समाज को ललकारा था, और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला योग्य पुरुष मेरे को नहीं मिला, और वो न मिलने के कारण मैंने उचित समझा कि मैं अपने अध्यात्म के रास्ते पर चलूं और इस ग्रस्त में ना उलझूं।
ये उत्तर इस देश की नारी ने दिया। आप अनुमान लगाओ कि कितनी विदुषी उस समय की भारतीय नारियां होती थी। तो आज विश्व मांगल्य सभा जिस महान कार्य को कर रही है, स्त्रियों के उनके स्वरूप से अवगत करा रही है, वो अपने स्वरूप को जाने कि उनकी जिम्मेवारी कितनी है। भगवान के बाद दूसरा स्थान भारत की नारी का है। और हमारे यहाँ लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, समाज में, देश में नारी जाति की पूजा, पूज सेवायाम यानी कि उसका सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। और जिन घरों में नारियों के दुख के आंसू गिरते हैं, वहां धर्म, कर्म, उपासनाएं, कर्म कांड सब निष्फल हो जाते हैं। ये शास्त्र, ये महर्षि मनु लिखते। भाई और बहनों, भारत की नारी और इसका सम्मान बहुत ऊंचा था। कहते हैं एक भगवान का बहुत भगत था, कहने लगा भगवान को आंख से देखूंगा। लोगों ने कहा रे वो अगोचर है, आंख से नहीं दिखाई देता, वो तो अनुभव करने की चीज है। जैसे हवा होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, भगवान अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसने कहा ना, मैं तो भगवान को आंख से ही देखूंगा। तो किसी ने कहा भाई आंख से भगवान को देखना है ना, तो उसका एक रूप है। और वो रूप क्या है? बहुत गजब की एक कवि ने कल्पना की थी, उसको न देखा हमने कभी, किसको? भगवान को। उसको न देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी? ओ मां, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या है? जब एक थका मांदा बच्चा गली में खेलता हुआ अपने साथियों के थपेड़े खा करके घर की दहलीज पर कदम रखता है और सामने बोलता मां, और मां जब उसको आंचल में लेती है, भगवान के सुख से कम सुख उस मां के आंचल में दूसरा नहीं हो सकता। ये मां है जो आश्रय देती है। और यदि वो मां अपने कर्तव्य को जान करके अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारवान बना दे, संस्कारवान। अब ये शब्द जो ना संस्कार, ये केवल भारत में है और दुनिया में कहीं नहीं है। संस्कार किसे कहते हैं? किसी चीज में जो गुण नहीं है ना, उसको उस गुण से परिमार्जित कर देने का नाम संस्कार होता है। यानी कि उसको उत्तम बनाना, परिष्कृत करना, उसको और गुणवान बनाने का नाम संस्कार है। बहुत मोटा अर्थ संस्कार, समझेंगे? ये माइक है ना मेरे सामने, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं? है ना माइक? अब इस माइक वाले से पूछो, है यहाँ कोई? है भाई? ये कितने रुपए का बंधु? ये केवल इतना बोल, मोटा बता दे, मैं खरीदने वाला नहीं हूं। 275, समझ में आई? लगभग 3,500 रुपए का ये इतना सा मामला, कुल इतना सा। समझ में आई बात? अब यूं पूछो ये बना किस चीज से? ये इतना ही लेना बस, ये ऊपर वाला ही इतना सा। इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक लगा है, थोड़ा सा लोहा लगा है, और इसका पूरा वजन 50 ग्राम होगा। क्यों साहब? इतना ही है ना। अब यूं करो, कल, आज तो रविवार है, दुकानें बंद होंगी, कल आप जाना अहमदाबाद के लोहे के बाजार में और प्लास्टिक वाली दुकान पे, और उनसे जाकर के कहना भाई लोहा क्या भाव है? बहुत महंगा जमाना है ना आजकल, क्या भाव होगा जी लोहा? 50 ग्राम लोहे की कीमत पूछना कितनी होगी? बताओ जी कितनी होगी लगभग? अरे 50 ग्राम की इस महंगाई में भी 20 रुपए होगी। क्यों साहब? इतनी होगी ना। और इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक लगा है, उसकी भी 10-1 रुपया होगी। दोनों मिलाकर के 30 रुपए का सौदा, और ये बंधु इसको 3,500 का बता रहा है।
क्यों साहब? सोचो, अब वो भी लोहा और इसमें भी लोहा, वो भी प्लास्टिक और ये भी प्लास्टिक। उस लोहे और प्लास्टिक की 50 ग्राम की कीमत दोनों की मिलाकर 30 रुपया, और इस 50 ग्राम प्लास्टिक की दोनों की मिलाकर 2,500 रुपया। अंतर किस बात का है? संस्कार का। समझ में आई बात? इस लोहे और प्लास्टिक में किसी साइंटिस्ट ने विशेष गुणों का आधान कर दिया और इतना गुण इसमें डाल दिए कि ये मेरी बात को पकड़कर दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। वो लोहा गुणहीन है जिसकी कीमत 30 रुपया है, और इस लोहे को गुणवान बना दिया, 3,500 रुपये कीमत है। यही काम इस देश की मां करती है। यदि जन्म दे करके छोड़ दिया चोर, उचक्का, लुटेरा, बदमाश, आतंकवादी, तो ये मां के द्वारा किया गया अपराध है। और यदि मां उसको याज्ञवल्क्य, कपिल, कणाद जैसे ऋषि बना देती है, तो वो इस राष्ट्र का निर्माण करने वाली होती है। इसलिए का माता निर्माता भवति। मां का निर्माण, राष्ट्रों का निर्माण, परिवारों का निर्माण, समाज का निर्माण, सबका मांगल्य, सबकी स्वस्ति मुक्ति का रास्ता यदि कोई प्रशस्त कर सकती है तो केवल मां कर सकती है। मां में वो दिव्यता है। मां ने महाभारत को पढ़ा। आपने अभिमन्यु का निर्माण एक मां के गर्भ में तो हुआ था। जीजा ने अभी बताया शिवाजी का निर्माण किया। आज जितने महापुरुष, जितने भी ऋषि मुनि, कोई भी धरती पर आया, उसके पीछे मां का योगदान है। और जितने भी धूर्त लोग आए, उसके पीछे भी मां का योगदान है। क्यों साहब? एक मां ने निर्माण किया, एक मां ने विध्वंस किया। एक ने कृष्ण को पैदा किया, एक ने कंस को पैदा किया, एक ने राम को पैदा किया, एक ने रावण को पैदा किया। राशि दोनों की एक ही थी। तो ये आप इसी से समझिए। तो मैं विश्व मांगल्य सभा के इन सभी अधिकारियों का महाराज श्री को बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये हमारे परिवारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस समाज को उन्नत बनाने का काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आओ मेरी माता और बहनों, हम मिलकर के भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों को अपनाएं, आने वाली पीढ़ियों को महान बनाएं, संस्कारवान बनाएं, दिव्य बनाएं। इसके द्वारा आपका जीवन भी सार्थक होगा और एक अच्छे राष्ट्र और समाज का निर्माण होगा, जिसमें कैसे लोग होंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। धन्यवाद। આપણે સૌ અત્યંત ભાગ્યશાળી છીએ કે માનનીય રાજ્યપાલશ્રીએ આજે આપણને ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું તથા દીવોથી દીવો પ્રગટાવી આજના આપના આ માર્ગદર્શનથી અમે વિશ્વ માંગલ્ય સભાના કામની ધજા અને સંપૂર્ણ ગુજરાત તથા વિશ્વમાં ફેલાવશું। સૌના સહકારથી 3 દિવસીય કેન્દ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક તથા આજના કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન સંપૂર્ણ પૂર્ણ થયેલ છે। તો આમાં આપ જે માતા બહેનો વિદ્યાર્થીઓએ સહયોગ યોગદાન આપ્યું, અમે આપ સૌના ઋણી છીએ। આ ઋણ નિર્દેશ કરવા હેતુ હું સૌભાગ્યવતી મોનિકાબેન પવારને આમંત્રિત કરીશ। मैं मोनिका गजानन पवार, सचिव कर्णावती महानगर, मंच को प्रणाम करती हूँ। माननीय श्री राज्यपाल जी, आपकी विशेष उपस्थिति तथा मार्गदर्शन से विश्व मांगल्य सभा को ऊर्जा प्राप्त हुई है। आपका सादर आभार और प्रणाम। हमारे प्रेरणा स्थान परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज, आपके आशीर्वचन से हर व्यक्ति में प्रेरणा का स्रोत जागृत हुआ। आपके श्री चरणों में विश्व मांगल्य सभा का प्रणाम। परम पूज्य रेणुका माई, माननीय रेखाताई जी, माननीय वृषाली ताई, आपका भी सादर आभार और प्रणाम।
गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह वास्तु सर्वोदय उपलब्ध करवाई, इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी का भी आभार। विश्व मांगल्य सभा भविष्य में भी आपसे इसी सहयोग की अपेक्षा रखती है। यह कार्यक्रम सफल बनाने हेतु सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी तथा जिन्होंने भी तन मन धन से सहयोग दिया, आप सभी को आभार। भारत माता की धन्यवाद। આપ સર્વેને વિનંતી કરીશ કે રાષ્ટ્રગીત માટે પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈશું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા की ધન્યવાદ. આપણે આપણા સ્થાન પર બેસી રહીશું જ્યાં સુધી માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી અહીંથી પ્રસ્થાન ન કરે. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે.